Students, Kesaman, I am your science teacher. Today we are going to attempt our exercise question answer. Question number 1 is name the correct part of the digestive system. A. Food is broken into small pieces by the dash. डैश में आपने लिखना है डाइजेशन. Digestion starts in the mouth. Number 3. Gastric juice is produced in the dash. dash में लिखना है stomach. D. Pancreatic juice comes from the pancreas. dash में आएगा pancreas. Bile is made in the liver. dash में आएगा liver. Intestinal juice is made in the small intestine. dash में आएगा small intestine. Water is absorbed from the undigested food in the large intestine. dash में आएगा large intestine. Feces are passed out of the body through the anus. dash में आएगा anus. Absorption of digested food takes place through the villi. dash में आएगा villi. Question number 2 is A part. Define respiration. Draw the respiratory system and label it. The answer is given on page number 15. On page number 15, the respiratory system. हेडिंग देंगे the respiratory system. सेकेंड पैराग्राफ से लिखना स्टार्ट करेंगे. Respiration is the process by which food is broken down or oxidized in the body to release energy. The body takes in oxygen from the air for respiration. At the same time, it gives out the carbon dioxide produced by respiration. This exchange of gases takes place in the lungs. This was the answer. And the diagram is shown in front of it. This diagram would be drawn with this question. Question number 2B is which gas is needed for respiration? Oxygen gas is needed for respiration. Question number 3 is which gas is produced by respiration? Carbon dioxide gas is produced by respiration. Question number 2D is where does gaseous exchange take place in the lungs? Gaseous exchange takes place in the alveoli or air sacs in the lungs. Question number is which structure protects the lungs? Answer is rib cage protects the lungs. Rib cage protects the lungs. Next question, question number F of 2. Question number 2F. Differentiate between breathing and burning. The answer is given on page number 16. Comparing respiration and burning. Similarities: both release energy from a fuel, both use oxygen and release carbon dioxide. Differences: respiration releases energy more slowly than burning. The rate of respiration can be controlled. Respiration produces only heat. Burning produces light as well as heat. Question number 3 is arrange the following activities in the correct sequence to show what happens when we breathe. Number 1, the intercostal muscles relax. Answer is air is forced out of the lungs. मैंने इसकी नंबरिंग की है, इस पर 1 लिख लें. The diaphragm relaxes. The chest gets larger. इस पे 2 लिख लें. The chest gets smaller. The intercostal muscles contract. 3 मार्क कर लें. Air is sucked into the lungs. The diaphragm contracts. इस पे 4 मार्क कर लें.
नंबरिंग आ गई 3, 4, 2 and 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज लेबल इन द फॉलोइंग डायग्राम. रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम है बच्चों. सबसे ऊपर लेरिंक्स, ट्रेकिया, लंग, ब्रोंकस, अल्वेलाई, ब्रोंकियोल. फिर से देख लें. लेरिंक्स, ट्रेकिया, लंग, ब्रोंकस, अल्वेलाई, ब्रोंकियोल. जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करवाए हैं वो आपने याद भी करने हैं और कॉपीज पे लिखने भी हैं. जब स्कूल ओपन होगा तो हम उसको चेक करेंगे. अब हम रीडिंग करेंगे और एक्सप्लेनेशन करेंगे. वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 6 ऑफ साइंस के 7. इट्स अबाउट वाटर. वी विल स्टडी कंपोजिशन, वाटर साइकिल, properties of pure water, testing of the boiling point, test for pure water, types of water and temporary and permanent hardness. Water आपको पता है हमारे अर्थ के सरफेस का 3/4 जो है वो वाटर पे मुश्तमिल होता है. इट्स फार्मूला इज H2O, दैट इज इट इज़ कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जहाँ से मर्जी आप वाटर जो है ले लेंगे उसका फार्मूला यही निकलेगा. 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं इसके अंदर और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है. ये है इसकी कंपोजिशन, यानी वाटर इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स. वाटर साइकिल आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ रेन दोबारा गिरता है हमारे सरफेस पे. वाटर टेबल भी है. अर्थ से हीट एवेपोरेट होके जाता है ऊपर और आसमान में और फिर जो है रेन की फॉर्म में नीचे आता है. फिर वो जो है सीप हो जाता है इनटू दी अर्थ और उसके बाद जो है दोबारा से वाटर टेबल का हिस्सा बन जाता है. इस सारे अमल को हम कहते हैं वाटर साइकिल. प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम इसकी. प्योर वाटर जो है वो बॉयल करता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फ्रीज करता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे. It is a bad conductor of heat and electricity. It is a very good solvent. It reacts with many metals and non-metals. इसके अलावा boiling point, इसका हम टेस्ट करने के लिए जाहिर है इसको बॉयल करेंगे वाटर को. If it would be pure, it would boil at 100 degree centigrade, and if it is not pure, it would not boil at 100 degree centigrade. Another test for pure water is testing with copper sulfate. If we will heat copper sulfate, it would turn into white powder. When we will add water to it, it will turn into blue again. Types of water पढ़ेंगे बच्चों. Types of water, there are 2 types, hard water and soft water. Soft water आम जो पानी होता है जिसके अंदर कोई मिनरल्स और सॉल्ट्स शामिल नहीं होते उसको हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर. इट फॉर्म्स लादर विद सोप इजीली. और दूसरा वाटर जो है वो होता है हार्ड वाटर. इट कंटेन्स मिनरल्स लाइक बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स एंड इट आल्सो मे कंटेन सम सल्फेट्स. Temporary and permanent hardness है. If the water contains carbonates and bicarbonates of calcium, it would be a temporary hardness, and if it contain sulfates and bisulfates of calcium, it would be a permanent hardness. Now move on to the book, students. Water is chemical substance which is found in abundance all around us. 3/4 of the earth's surface is covered with water. Water is a combination of oxygen and hydrogen and its chemical formula is H2O. वाटर क्या है? केमिकल सब्सटेंस है, हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा पाया जाता है. 3 हिस्से जो हैं अर्थ के वो वाटर है और इसका फार्मूला जो है वो H2O है, यानी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है. वाटर occurs naturally as rain water, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर एंड सी वाटर. वाटर जो है वो मेनली नॉर्मली कैसे हमारे पास मौजूद होता है.
बारिश की सूरत में, ग्राउंड जो वाटर टेबल है उसकी सूरत में, और दरियाओं की सूरत में, और आपको पता है समंदर की सूरत में। रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर बट इट फॉल्स थ्रू द एयर, इट डिजॉल्व्स मैनी गैसेस सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रेन वाटर जो है सबसे प्योर होता है, लेकिन जैसे ही वो हवा में आता है उसमें बहुत सारी गैसेस जो है मिक्स हो जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इट आल्सो वॉशेस डाउन डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक एंड बैक्टीरिया, इसमें बहुत सारी बैक्टीरिया, डस्ट पार्टिकल्स और बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो भी मिल जाती हैं। रेन वाटर sinks into the ground, the water flows, it carries with it mud and clay particles, water products and chemical fertilizers, and at homes and factories, and pesticides from field are also added to it. All these harmful substances flow with the river water to the sea. Hence the water contain a lot of impurities in the form of bacteria and dissolved and suspended substances. इस तरह से आस्ता आस्ता रेन वाटर जो है जब आगे को बढ़ता है, फ्लो करता है, तो ये रिवर में जाता है, रिवर से जो है वो कहाँ जाता है, सी के अंदर। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी फैक्ट्रीज़ का, होम का, या फिर मड या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर मिलती चली जाती हैं। इस तरह से है जो है इसमें बैक्टीरिया और डिजॉल्व पार्टिकल और कुछ सस्पेंड किए होते हैं इसके अंदर, वो पार्टिकल्स मिल जाते हैं। फ्रेश वाटर कंटेन डिजॉल्व एयर, दैट इज़ वाई फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स रिमेन अलाइव इन इट, दे ब्रीथ द डिजॉल्व एयर। जो फ्रेश वाटर है उसके अंदर एयर मौजूद होती है, जिसकी वजह से फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल जो हैं इसमें रह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है एयर के अंदर उससे वो सांस ले सकते हैं। द वाटर साइकिल, वाटर इज यूज्ड बाय ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट इज़ यूज्ड इन फैक्ट्रीज एंड फील्ड्स, बट इट इज़ नॉट यूज्ड अप बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग एडिड टू और रिसाइकल सो दैट इट्स सप्लाई डज नॉट रन आउट। तो अब जो है वाटर जो है साइकिल के फॉर्म में घूमता है, हर बंदा, हर इंसान और हर एनिमल, हर प्लांट जो है इसको यूज़ करता है, फैक्ट्रीज इसको यूज़ करती हैं, फील्ड्स में ये यूज़ होता है, लेकिन ये जो है ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये बार बार जो है ऐड हो जाता है, रिसाइकल होकर वापस ज़मीन को मिल जाता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर हैज़ नो कलर, टेस्ट और स्मेल, इसका कोई टेस्ट, कलर या स्मेल नहीं होती। इट फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ बन जाती है। इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉयल होना शुरू हो जाता है। इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती प्योर वाटर के अंदर से। इट इज़ वेरी गुड सॉल्वेंट, इसमें बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। इट रिएक्ट्स विद मैनी मेटल्स एंड नॉन मेटल, बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल इसके साथ रिएक्शन करके मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। टेस्टिंग है जी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है और फ्रीज़ करता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसी को अगर हम टेस्ट करें तो हो सकता है। टेक 2 beakers A and B, pour some distilled water into A, pour water containing some common salts into B, suspend a thermometer in each beaker, heat the water and note the temperature of the water when it starts boiling। क्या करेंगे, 2 बीकर लेंगे, एक में प्योर वाटर डालेंगे, एक में मिनरल्स वाला वाटर डालेंगे। अब इसकी बॉइलिंग चेक करेंगे। जो प्योर वाटर होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करेगा, और जो इम्प्योर वाटर होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल नहीं करेगा। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 54, टेस्टिंग विद कॉपर सल्फेट पाउडर। कॉपर सल्फेट पाउडर इज वाइट, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ प्योर वाटर इज एडेड टू इट, इट टर्न्स ब्लू। कॉपर सल्फेट पाउडर जो है वाइट होता है, अगर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्लू बन जाएगा। टाइप्स ऑफ वाटर, सॉफ्ट वाटर है जी, हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर इजीली फॉर्म लादर विद सॉप, जो सॉफ्ट वाटर होता है उसकी झाग जो है अच्छी तरह से बनती है। हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म लादर विद सॉप इजीली, बट इट हैज़ अ प्लेजेंट टेस्ट एंड गुड फॉर द बोन्स एंड टीथ, एज इट कंटेन डिजॉल्व कैल्शियम कंपाउंड्स, बट इट has disadvantages. It leaves scale in kettles, hot water pipes and boilers. It needs more soap to lather than soft water. जो hard water होता है
ये लादर नहीं बनाता, लेकिन हमारी हड्डियों के लिए और बोन के ज़रिए के लिए ये अच्छे होते हैं क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। स्केल्स बन जाते हैं इसकी केटल्स के अंदर, वाटर पाइप के अंदर और बॉयलर के अंदर, और इससे कपड़े धोने के लिए हमें ज़्यादा सोप लगाना पड़ता है। टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस इज caused by the presence of dissolved calcium hydrogen carbonates. When temporary hard water is boiled, the calcium hydrogen carbonate components turns to calcium carbonate. This is insoluble and it is collected on the sides of the pot. The water becomes soft. टेम्परेरी हार्डनेस जो है कैल्शियम के हाइड्रोजन कंपाउंड यानी बाइकार्बोनेट्स जो हैं उसके अंदर जब होते हैं मौजूद, तब कॉज होता है अगर हम इसको बॉयल करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा जो डिजॉल्व नहीं होता वाटर में, और इससे जो है वाटर भी सॉफ्ट हो जाएगा। परमानेंट हार्डनेस इज caused by dissolved chemicals such as calcium and magnesium compounds, mainly calcium hydrogen carbonate, calcium sulfate, magnesium sulfate carbonate and magnesium sulfate come from form when the compounds react with the producing an insoluble product that floats on the water. परमानेंट हार्डनेस जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड्स की वजह से ही होती है। इसमें कार्बोनेट्स भी आ जाते हैं, सल्फेट्स आ जाते हैं मैग्नीशियम के और कैल्शियम के, और आगे इसके साथ रिएक्शन करके तो इसके अंदर जो है माउस का एक इनसॉल्युबल चीज़ बन जाती है और वो फ्लोट करना शुरू हो जाती है वाटर के ऊपर। So students, this was your lecture for today, and I hope you will be learning and writing the question answers. Okay.